Hey everyone, this is Satyam Chaturvedi. I'm back again after a very long time as my exams were going on, so I was unable to record the videos for you. But I am here again, and now the regular videos will be provided to all of you. And before I had stopped sending videos and study materials, we were discussing tense, and the topic which we had covered in tense was simple tense of present, past and future. That thing I had already explained. So let's get a quick revision of that tense. So basically tense are of three types: present, past and future. We all know it. And each and every tense can be divided into four parts that were simple tense, that is called indefinite also, right? Second is continuous tense, which you are going to read here right now, which is also known as imperfect tense. Third was perfect, and fourth is perfect continuous. So this is the second video of the topic tense, in which we are going to cover the continuous tense, which is also known as imperfect tense. Okay, so let's start this particular explanation and see the concepts of this tense. So continuous means something, the work being done in a continuous manner, means कि कोई भी काम लगातार हो रहा हो. ओके, वाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट? इसको इम्परफेक्ट क्यों बोला जाता है? दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू विल स्टडी द परफेक्ट टेंस. जब आप परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे तो उसमें आपको परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, विच विल बी जस्ट रिवर्स टू द इम्परफेक्ट वन. सो आई विल टेल यू इन शॉर्ट कि परफेक्ट टेंस में कोई भी काम फिनिश्ड होता है, बट इन इम्परफेक्ट टेंस द टास्क इज स्टिल गोइंग ऑन. काम अभी भी चलता रहता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट टेंस और continuous tense. So this was the first concept. I hope it is clear. Now let's see what is the recognition. Recognition means पहचान. हम कैसे पहचानेंगे whether the sentence is in Hindi or whether the sentence is in English, that which particular sentence or sentences belong to which tense. So recognition is very important in that case. और यहाँ मैंने तीन अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों एक बार में कवर होगा. जस्ट हैव अ लुक. So the recognition in Hindi is that at the end of sentences raha rahi words will come. So raha है, रही है, रहे हैं based on the subject, means अगर singular होगा तो रहा है लगा होगा, plural होगा तो रही रहे हैं लगा होगा, और singular होगा female में तो रही है लगा होगा. What is the recognition in past? Recognition in past, these will be all these है will be converted into था. ये सारे के सारे है था में बदल जाएगा. मीन्स किसी भी वाक्यों के अंत में जब रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए हिंदी में, तो वी विल ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस. थर्ड इज ये हा है और था किससे बदल जाएगा फ्यूचर में? होगा से. तो रहा वर्ड इज कॉन्स्टेंट इन ऑल द रिकॉग्निशन, बट डिपेंडिंग ऑन द टेंस वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वी विल चेंज द है, था एंड होगा वर्ड. ओके, सो अगेन इन हिंदी वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट इफ इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे, इट विल बी द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस. इफ इट विल बी रहा था, रही थी, रहे थे, इट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड इफ इट विल बी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इट विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर explanation, that the recognition has been described. Now let's see what the second important part of the any tense is, that is helping verb. So helping verb is also known as auxiliary verb. So auxiliary means ऐसे verbs जो help करते हैं main verb की किसी भी sentence को form करने के लिए. And in different tense the different helping verbs are used. So see here, I have segregated here. So when there will be the present continuous, the helping verb is going to be used is, am and are. So is will be used with all the singular subjects like he, she, it, and any other names also like Ram, Shyam, Satyam. It can be anything, right? Any names if there is there, so we will use is with it. Am, ओनली आई इज यूज्ड विद एम, वी ऑल नो इट, क्योंकि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ ही होता है, तो दिस इज प्रेटी इजी फॉर अस. एंड आर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो जहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे जैसे वी, यू या दे, तो उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आर लगेगा. सो दिस वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ, दिस वॉज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट. नाउ कम टू पास्ट. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस?
of continuous? The answer is was and were. So is am are in present, was were in past. Was किसके साथ लगेगा? I, he, she, it means all the singular subjects including I. I के साथ भी was ही लगता है. There is an exception in which we use were with I that I will teach in another video. ऐसे भी एक एक्सेप्शन होता है जहाँ I के साथ वर लगाया जाता है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दैट इज़ द ओनली एक्सेप्शन, वो सिर्फ एक ही अपवाद है. सो बेसिकली इन द टेंस व्हेन वी अप्लाई द रूल्स ऑफ टेंस वी ऑलवेज यूज वॉज विद आई. तो वॉज इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड वर इज कंसिडर्ड एज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. नाउ लेट्स कम टू द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर. तो फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक विल बी, दूसरी शैल बी. तो जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि शैल सिर्फ दो वर्ड्स के साथ लगता है, दो सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, आई एंड वी, और बाकी सबके साथ विल लगता है, राइट. सो हियर इट ऑल्सो बी अप्लाइड. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज है, वहाँ सिर्फ विल शैल था, यहाँ पे बी भी लग जा रहा है. दैट इज वाई द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इज विल बी एंड शैल बी. यू कैन ऑल्सो पे अटेंशन टू द पार्ट दैट सी यू हैव लर्नड अबाउट वर्ब टू बी फॉर्म. वर्ब की टू बी की फॉर्म आपने पढ़ी है, तो वो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की फॉर्म वही है, यहाँ पास्ट की वर्ब टू बी है, और यहाँ फ्यूचर की वर्ब टू बी की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई हैं. नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेन वर्ब. एंड मेन वर्ब कंटेन्स मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब. दिस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल या जीरंड फॉर्म. बट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों जगह पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है. सपोज दैट द मेन वर्ब इज गो, सो इट विल बी यूज लाइक गोइंग, और यू कैन से स्लीप, सो स्लीपिंग, ईट, ईटिंग. चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, मेन वर्ब सब में कॉमन है. सो दिस इज वेरी easy. This makes the explanation part very easy and the concept also easy. Only we have to focus on the helping verbs used in different tenses. In present it is am are, in past it will be was were, and in future it will be and shall be. Now let's see the sentence structure of 5 types which I have told you. First one is affirmative. So any sentence will be framed based on SVO, as I have already discussed, and we will be divided into two parts. First helping verb will come and then main verb will come. So let's see. Subject प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये जितने भी ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, मैंने तीनों के हेल्पिंग वर्ब लिख रखा है डिपेंडिंग ऑन कि किस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और किस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है. सो इफ द हेल्पिंग वर्ब, इफ द सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस, सो वी विल यूज इज एम आर. If it is past, we will use was were, and if it is future, we will use will be and shall be. So this is the combination of all the helping verbs of different tenses. That is why ये जितने भी पार्ट ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक लिखा है, this is totally helping verb. Okay? So subject plus helping verb, then plus main verb की ing form, and after that object. This is the structure of affirmative. Now let's see negative. Negative में और क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं. तो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ये सारी, और उसके बाद नॉट लग जाएगा, राइट. देन मेन वर्ब की ing फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. द येस नो क्वेश्चंस मीन्स इंटेरोगेटिव विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, जो हाँ या ना में जवाब दिए जा सकते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं इंग्लिश में. और हिंदी में वो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो येस आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो. सो द सेंटेंसेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब कैन बी टर्म्ड एज येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा डिपेंडिंग ऑन द टेंस. अगेन इज एम आर, वॉज वर और विल बी शैल बी डिपेंडिंग ऑन द टेंस कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिनका आंसर हमें स्पेसिफिकली देना होता है, जैसे सॉरी, वाई एम आई टीचिंग यू, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इट कैन नॉट बी आंसर्ड इन येस और नो, है ना. तो क्या करेंगे हम, वी विल यूज द क्वेश्चन वर्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे वाई एम आई टीचिंग यू, राइट. सो दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज हु टाइप. हु टाइप इज ऑलवेज रिफर्स एज अफर्मेटिव. क्यों? क्योंकि हु क्या करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है. किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है हु. जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सेंटेंस इज एंडिंग विद रहा हूँ, सो दिस इज द
कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज व्हाई आई हैव ट्रांसलेटेड इट लाइक दिस कि सब्जेक्ट मैंने आई यूज़ किया, चूंकि वो प्रेजेंट टेंस था तो मैंने एम लगाया आई के साथ और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि आपको कौन पढ़ा रहा है, हु अगर आ जाएगा तो आई को रिप्लेस कर लेगा हु, तो हु हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में, एम तो लगेगा नहीं हु के साथ, सिर्फ इज लगेगा, तो हु इज teaching you, it will become a question whose answer will be that I am teaching you. So this was the explanation of sentence structure. We have also discussed the recognition, helping verb and main verb used in continuous or imperfect tense. Now let's have a look on the example, and after that this particular whole continuous tense topic will be finished. Example, I have taken a sentence in Hindi कि इस लॉकडाउन में भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है. आई हैव यूज्ड रही है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. यू कैन यूज रहा था, रही थी, मीन्स अगर डिपेंडिंग ऑन द टेंस कि जैसे हम जब ये लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा एंड वी विल मूव ऑन इन आवर रेगुलर लाइफ्स, तो हम कहेंगे लॉकडाउन के टाइम भारत की जीडीपी बहुत गिर रही थी, तब वो पास्ट की बात हो जाएगी. सो वी विल यूज द पास्ट हेल्पिंग वर्ब. या हम अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जीडीपी और भी ज़्यादा गिर रही होगी, सो दिस विल बी द फ्यूचर पार्ट. सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, जैसे यहाँ रहा है यूज है तो हम इज एम आर लगाएंगे, रहा था होता तो हम वॉज वर लगाते, और रहा होगा अगर होता तो विल बी शैल भी लगाते. सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बाकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो सेम ही होती है, राइट. Now let's see what will be the translation of this particular sentence, which is इस लॉकडाउन में भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है. So the subject in this sentence is भारत, that is India, क्योंकि इसी से रिलेटेड काम हो रहा है. और काम क्या हो रहा है? जीडीपी का गिरना. So falling, fall is the main verb, और जब इसका हम आईएनजी फॉर्म करेंगे तो वो फॉलिंग हो जाएगा आईएनजी लग करके. सो लेट्स सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, दैट सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, और फिर वर्ब की आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. सो इन अफर्मेटिव इट विल बी इंडियाज जीडीपी, दिस इज योर सब्जेक्ट. इज योर हेल्पिंग वर्ब बेस्ड ऑन द सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इज लगाया, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब. तो इंडियाज जीडीपी इज फॉलिंग, भारत की जीडीपी गिर रही है. अब बाकी आगे का पार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो भारत की जीडीपी गिर रही है कंटिन्यूअसली, लगातार, इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है. व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ इट? इंडियाज जीडीपी इज नॉट फॉलिंग. व्हाट वी विल ऐड? नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा कि भारत की जीडीपी लगातार इस लॉकडाउन में नहीं गिर रही है. इंटेरोगेटिव विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो. तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाया. सो इट विल बी इज इंडियाज जीडीपी फॉलिंग कंटिन्यूअसली इन दिस लॉकडाउन, एंड इट्स ट्रांसलेशन विल बी क्या भारत की जीडीपी लगातार इस लॉकडाउन में गिर रही है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो. आप बोल सकते हो या तो हाँ या तो ना. तो दैट इज वाई द क्वेश्चंस which starts with helping verb in English and which starts with kya word in Hindi are the ones which can be answered in yes or no. Okay, now let's see the question word type. अगर इसमें हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की जीडीपी लगातार क्यों गिर रही है इस लॉकडाउन में, सो वी विल जस्ट ऐड क्वेश्चन वर्ड प्रायर टू दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर के पहले हमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा. सो इट विल बी व्हाई इज इंडियाज जीडीपी फॉलिंग कंटिन्यूअसली इन दिस लॉकडाउन. इस लॉकडाउन में भारत की जीडीपी लगातार क्यों गिर रही है. नाउ दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन येस और नो. दिस क्वेश्चन नीड्स अ स्पेसिफिक आंसर. इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर sentence is being framed in the structure of question word. Now let's see who type. अब who type के लिए आपने एक relative adverb जरूर पढ़ा होगा या relative clause आप आगे चल के पढ़ेंगे जो तीन चीज़ों को बताता है. that is which, who and where. So which refers to the नॉन लिविंग थिंग्स. एनी नॉन लिविंग थिंग को विच से डिनोट किया जाता है.
लिविंग बींग्स जो ह्यूमंस होते हैं उनको हु से डिनोट किया जाता है, और वेयर रिफर्स टू द प्लेस। जैसे आई नो दैट गाई हु वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल प्रेजेंट था, तो जो वर्ड हु जो यूज हुआ वो उस पर्सन के लिए यूज हुआ, राइट। बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पे कोई पर्सन तो है नहीं, यहाँ तो इंडियाज जीडीपी है, भारत की जीडीपी, ये एक हिसाब से तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इसके लिए हम हु नहीं लिखेंगे। हु का नॉन लिविंग वाला वर्जन क्या होता है, हुज, किसकी, मतलब हु के जगह पे जब हमें किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर करना रहता है, जैसे हुज पेंसिल इज दिस, किसकी पेंसिल है ये, तो वो किसी ना किसी को रिफर कर रहा है, राइट। सो दैट इज द अनदर यूज ऑफ हु। तो यहाँ पे हम हु नहीं बना सकते क्योंकि जो सेंटेंस है वो पर्सन के लिए नहीं है, किसी इंसान के लिए नहीं है, नॉन लिविंग थिंग के लिए है। सो दैट इज वाई वी विल यूज हुज जीडीपी, किसकी जीडीपी इज फॉलिंग कंटिन्यूसली इन दिस लॉकडाउन, लगातार गिर रही है इस लॉकडाउन में। सो आंसर विल बी कि इंडियाज जीडीपी इज फॉलिंग कंटिन्यूसली। एंड एक और चीज हो सकती है बेटा, हु नेगेटिव। हु नेगेटिव मीन्स सिंपल एज इट इज, ये बिल्कुल नेगेटिव की तरह रहेगा। अगर हु सिंपल है तो ये अफर्मेटिव की तरह, और हु नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह रहेगा, जिसमें हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। सो इट विल बी हुज जीडीपी इज नॉट फॉलिंग कंटिन्यूसली इन दिस लॉकडाउन, किसकी जीडीपी लगातार इस लॉकडाउन में नहीं गिर रही है। सो दैट वाज द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई हैव मेड 6 फ्रॉम दिस हु नेगेटिव। यू कैन ऑल्सो मेक 6 लाइक इंटेरोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव भी बन सकता है कि इज इंडियाज जीडीपी नॉट फॉलिंग, ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ से इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस use and the situation we are going to apply the concept of these particular 5 types of sentences, as well as we will use this structure with correct helping verb and main verb की ing form to form the right sentences of imperfect tense, which is also known as continuous tense. So again a quick revision, प्रेजेंट टेंस की रिकॉग्निशन रहे हैं, पास्ट टेंस में वही था हो जाएगा और फ्यूचर में होगा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, वॉज वर्ब है पास्ट की, विल बी शैल बी है फ्यूचर की, और मेन वर्ब की तीनों जगह आईएनजी फॉर्म होगी, तो दैट इज नॉट एन इशू। अब कोई सेंटेंस सपोज दैट इसी सेंटेंस को पास्ट में दिया होता तो हम क्या करते कि इस लॉकडाउन में भारत की जीडीपी लगातार गिर रही थी, तो इंडियाज जीडीपी इसके जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ वॉज आ जाएगा, वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली, हर जगह वॉज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका पास्ट टेंस। या गिर रही होगी तो अगर फ्यूचर में होता तो ये हो जाएगा विल बी, इंडियाज जीडीपी विल बी फॉलिंग कंटिन्यूसली, इंडियाज जीडीपी विल नॉट बी फॉलिंग कंटिन्यूसली। So depending on the tense in which we are being given to translate or given to fill the right form of verb, we will apply these rules and concepts of continuous tense and solve the questions. I hope this particular concept is pretty clear to you. I have explained each and everything which was given and which is important for you. Now in our next video we will discuss perfect tense, and in another video we will discuss perfect continuous tense. After that our tense part will be finished. So till then, take care, bye bye.